Good evening, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest edtech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I have been your teacher and mentor in this journey. And I've been covering UGC NET Paper 1 for a while now. And as your examination is nearby, there is not much time left, as we are closing out to the near examination or your preparation stages, right? So in this video, we'll talk about ICT, Unit 8, Information and Communication Technology. So this is an important unit, a very important unit for your examination. We'll discuss about what are the things that you need to cover in this particular unit. So ICT, Information, Communication and Technology, Unit 8. Now, certainly what you can expect in examination are basically three categories of question, not three kinds, three categories. So how should you prioritize them? Right. So firstly, initiatives. So there are some initiatives that are being taken by the government of India. कुछ initiatives होते हैं जो government of India लेती है. So as you have been seeing that COVID came and how we shifted upon online education, how communication, how technology has been imbibed in our education system. So what are the steps, what are the things, and what are the initiative, what are the schemes that the government of India has taken place for imbibing information communication technology in our curriculum and in the structure of universities, right? एंड द लर्निंग प्रोसेस. तो ये सारे इनिशिएटिव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सेकेंड, अगर आपको और क्या इम्पोर्टेंट जो आपको यूनिट से आ सकता है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज आपका द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, OS related questions, operating system related questions, right? So these are those questions which you can easily expect and has been came in your previous year examination as well. ये आपके hardware related questions. So which of the computer part is a hardware, and which categories comes under into the software, right? And what is OS, which OS are popular, and these are the questions which you can expect a question. Right, so earlier these used to be very important and crucial, right? 25, 16, 17, 18 तक काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते थे. बट अब काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया. पैटर्न चेंज होने की वजह से इनिशिएटिव और स्कीम्स पे बहुत फोकस करा गया है. तो इनिशिएटिव स्कीम्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए टॉपिक. थर्ड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, दैट इज़ योर बाइनरी कन्वर्जन, राइट? जो भी आपने देखा होगा कन्वर्जन सिस्टम, बिट्स टू बाइट्स, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट, जेटाबाइट, पेटाबाइट. तो ये जो सारे आपके हैं कन्वर्जन, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि कभी कभार आपको एक क्वेश्चन 1 मार्कर आ जाता है. तो मैं इसको इन तीनों कैटेगरीज में थोड़ा लीस्ट रेट करता हूँ. बाकी जो आपके इनिशिएटिव स्कीम्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, राइट? तो आज की क्लास में व्हाट वी विल डू, विल टॉक अबाउट इनिशिएटिव एंड स्कीम. सेकंड एंड थर्ड, इफ यू वांट टू नो अबाउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो which you can search in our Talent Blazer YouTube channel, which on which I have covered all the previous year question example related to all the previous year related previous year questions. तो आपको टैलेंट ब्लेजर के यूट्यूब चैनल पे जाना है. वहाँ पे लाइव सेशन से मेरा यूनिट 8 ICT पे एक सेशन है जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करी हुई है, राइट? तो आज हमें जिस चीज़ पे बात करनी है, दीज आर द टॉप डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन. तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो भी आपके एग्जामिनेशन में टॉप डिजिटल इनिशिएटिव्स होते हैं वो आपके एक तो यूनिट 1 में भी रिजेंबल करते हैं, यूनिट 8 में भी आते हैं. तो वहाँ से क्या बन जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू कवर दिस. एंड मैंने देखा है दिस इज़ अ ट्रेंड दैट not most of the educators online take this topic. So this is an important topic and that is why you need to cover it. अगर आप कवर करना है तो make sure that you stick till the end. सारे जो भी मेजर schemes है, I am covering all those initiatives in this video, so make sure that you don't miss out on it, right? So firstly we'll talk about this one. I think most of us, if you have been preparing for UGC NET, अगर आपने कभी भी UGC NET की तैयारी थोड़ी भी करी है
तो आपको स्वयं के बारे में पता होगा, स्वयं होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी लोगों को नहीं पता है। यू नो व्हाट, बेसिकली व्हाट दे नो, इट्स लाइक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक। पता नहीं, मूक कोर्स है बस स्वयं के बारे में, और कुछ नहीं पता उनको, फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी आधे से ज़्यादा लोगों को। सो दैट इज़ वाई यू नो देयर, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन नहीं आता, ये जो आपको अंडरलाइन, ये बोल्ड में है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। बिकॉज अब even the examiner want to test you whether you know about things or not, right? तो उनसे आपसे वो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो आधे बच्चे ब्लैंक हो जाएंगे। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो ये आपका स्वयं एक इंडिजीनियस, हमारे इंडिया, मेड इन इंडिया का आईटी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। तो वो एक मूक प्लेटफॉर्म पे फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दैट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन एनी टाइम एंड एनीवेयर यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो इसमें क्या है, हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसके पास, अगर आपके पास एक इंटरनेट है, आपके पास एक कनेक्शन है, और आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो यू कैन ईजिली कैन गेट द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ के जो एजुकेटर्स होते हैं वहाँ पे वो हाईली डेडिकेटेड, हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से वही लोग आपके ये कोर्सेज रन करते हैं। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक दिस इनिशिएटिव, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, याद कर लेना। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो दैट दिस वॉज लॉन्च्ड on July 9, 2017 by our then President Shri Ramnath Kovind ji. So this was launched in July 9, 2017. तो डेट भी याद कर लेना, दो अब इतने रेलिवेंट नहीं रहेगा डेट। इनिशियली लेट सपोज अगर आपका पेपर 2018 में होता, 2019 में होता, तब ये डेट के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता। बट अगर कोई लेटेस्ट स्कीम है तो उसमें डेट को याद कर लेना। हाँ, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई टोल्ड यू दिस दैट दिस वाज लॉन्च ऑन 2017 July 9। तो ये आपका है क्या, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जिसे हम लोग, कोई भी, आप भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। स्वयं प्लेटफॉर्म किसने डेवलप करा है? अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसे डेवलप करती है। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD इसको डेवलप करा है। और किसकी हेल्प ली है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और इसको साथ में सपोर्टिंग कौन था? ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, राइट। तो ये जो चीज़ है इसको बहुत स्टार मार्क कर लो, मेक श्योर ये जब आप पढ़ रहे हो, जब वाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर if you are one of those kids, those who wants to make the notes, right? Because I actually मेरा भी यही एक एक रहता है स्टूडेंट्स को बताना कि वाइल यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, ट्राई टू मेक सम नोट्स। आप थोड़े थोड़े टिप्स, बहुत स्निपेट्स, छोटे छोटे से नोट्स बना लो, एंड दैट विल हेल्प इन योर रिविजन। बिकॉज रिविजन इज, आई थिंक रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेयर योर नेट और JRF सक्सेस इज डिसाइडेड, राइट। तो अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो रिविजन के लिए आपको पता होना चाहिए, आप यू वोंट बी गोइंग थ्रू द टॉपिक अगेन एंड अगेन, राइट। दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बट अगर आपको रिवीजन करनी है तो मेक श्योर यू नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे बताया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स तो आपकी, और यहाँ पे कौन कौन साथ में था। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसका सपोर्ट मिला? हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, राइट। तो अगर ये सब आपको क्लियर है दिमाग में, तो इसको आप साथ साथ एक स्मॉल नोट्स भी बना सकते हो, राइट। दैट कैन बी इजीली एक्सेसिबल व्हेन यू आर रिवाइजिंग, सो दैट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। बिकॉज आपके पास यही नहीं कि सिर्फ आपको पेपर 1 रिवाइज करना है, आपको पेपर 2 के लिए भी रिवाइज करना, पढ़ना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, वो दिमाग उस टाइम पे अगर आप रिवाइज एंड में करोगे पूरा पूरा टॉपिक तो आप मिस आउट कर दोगे, राइट। लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स है मूक पेडागॉगी में, राइट। तो हमने इसके बारे में बात करी पहले यूनिट 1 में। तो इसमें आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिसमें पूरा पूरा होल कोर्स कवर हो जाता है। नॉर्मली अबाउट 20 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स। लेक्चर्स को भी ऐसे बांटा कि आपके 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे। तो ये एक मूक पेडागॉगी है कि इसमें वीडियो ट्यूटोरियल होगा। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है, तो ये आपको पता होने चाहिए कितने क्वाड्रेंट्स है, क्या क्या है। एक तो वीडियो ट्यूटोरियल है, ई कंटेंट है, राइट। सेकंड ई कंटेंट, अगर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारे उसी से रिलेटेड आपको मटेरियल मिल जाएगा, दैट कैन ऐड टू द लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू द वीडियो ट्यूटोरियल्स, राइट। लेट्स सपोज अगर while talking about e-content, so towards the end I have a surprise for you guys as well. So we are kind of similar, we are following kind of similar pedagogy, right? तो ई कंटेंट है। फिर उसके बाद हमारा सेल्फ असेसमेंट, आपको क्विजेज और असाइनमेंट दिए जाते हैं दैट इंटरपर्स द कोर्स। तो आपको जो कोर्स से रिलेटेड आपको
क्विज और असाइनमेंट मिलेंगे, जिससे लेट सपोज इफ़ यू हैव कवर्ड अ पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर करा है, ओके, उसके बाद यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ, तो उससे रिलेटेड आपको क्विज एंड असाइनमेंट मिलते हैं। तो वो जो चीज़ें आप अगर सॉल्व करते हो तो उसमें एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलता है, दैट यू नो दिस टॉपिक, राइट। सो दैट इज वाई इट इज गिवन ओवर देयर। एंड देयर आर डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज। तो अगर लेट सपोज समटाइम्स एज अ स्टूडेंट, even I used to feel that, maybe even after watching video tutorials, I feel that I'm not able to understand this particular point. तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो तब भी आप यू कैन यूज डिस्कशन forums फॉर पोस्टिंग क्वेरीज। तो अगर आप कोई क्वेरी पोस्ट करोगे, सो probably the concerned person can reply to your query, or one of your uh, mate, right, the friends could also answer to that particular query, right। तो अगर आपके कोई बैचमेट है, राइट, लेट सपोज आप कोर्स फॉलो कर रहे हो, आपके साथ और भी बहुत स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो वही पर्टिकुलर कोर्स फॉलो कर रहे हैं, उनको आता है, तो वो वहाँ पे डिस्कस करके देखें, गिव यू अ रेलेवेंट आंसर टू योर पर्टिकुलर क्वेरी। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वीडियो ट्यूटोरियल है, उसके बाद आपके ई कंटेंट है, उसके बाद आपके असाइनमेंट्स हैं, और देन फाइनली डिस्कशन फोरम्स है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं आपके मूक पेडागॉगी में, और ये हमारे बात कर रहे हैं स्वयं की, राइट। अब हम मूव करते हैं अब अपने सेकंड डिजिटल इनिशिएटिव के टॉपिक पे, स्वयं प्रभा। अब नाउ देयर हैज बीन सम लेटेस्ट एडिशन। तो यहाँ पे द स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल devoted to telecasting of high quality education program on 24/7 basis using the GSAT 15 satellite। तो ये जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये मार्क करने का इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि आपसे इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ इट्स नॉट 32 एनी मोर, इट्स 32 एनी मोर, इट्स 34 नाउ। तो चेंजेस हो चुके हैं, पहले 32 थे, अब विद एडिशन आ चुके हैं, 2 चैनल्स और बढ़ चुके हैं, तो इट्स नाउ 34। तो जो काउंट है, दिस काउंट आई हैव एक्चुअली विजिटेड द स्वयं प्रभा वेबसाइट। तो वहाँ पे जाके मैंने अभी रिसेंटली चेक करा, तो इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 34। पहले 32 होता था, अब 34 हो गया। तो इसमें होता क्या है, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्वयं एंड द स्वयं प्रभा। प्रभा बेसिकली इट्स टॉक्स अबाउट योर DTH चैनल्स, आपके डायरेक्ट टू होम, योर एग्जाम्पल ऑफ एयरटेल टीवी, डिजिटल टीवी, डिश टीवी, टाटा स्काई, राइट। तो ये आपके सारे DTH है, राइट, डायरेक्ट टू होम फैसिलिटी। तो उसमें आपको 24/7 पे बेसिस पे हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल्स मिलेंगे। एवरी डे वहाँ पे नया कंटेंट आता है फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। तो 4 घंटे के लिए कुछ नया कंटेंट आएगा, उसको 5 बार रिपीट करा जाता है, जिससे आप अपने टाइम और अपने कन्वीनियंस पे उसको देख सकें, राइट। द चैनल्स आर एम्पलिंग फ्रॉम वेयर, बाई से गांधीनगर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज नाउ यू हैव टू थिंक अ स्टेप अहेड ऑफ योर एग्जामिनर। जो हमारा आपका एग्जामिनर जो अभी आपके पेपर सेट कर रहा है, he or she might know that you'll study about this, you maybe remember this, like 34 digital channel, GSAT 15 satellite है, बट वो चैनल्स कहाँ से अपलिंक हो रहे हैं, फ्रॉम बायसेग गांधीनगर। मे बी यू वोंट बी पेइंग मच इंपॉर्टेंस टू दिस इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ से वो आपसे क्वेश्चन पूछ के ट्रिकी कर सकता है आपके लिए, तो बट वो हमें उस ट्रिक में नहीं फॉल करना। द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS। तो ये जो सारे आपके हैं, आपका सिंपल सिंपल सा है कि अगर हमें डिफरेंस पता करना है स्वयं एंड स्वयं प्रभा में, सो द मेजर डिफरेंस इज द मीडियम। मीडियम क्या है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो इंटरनेट से आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए। दिस इज ऑन टेलीविजन बेस्ड, डायरेक्ट टू होम। तो आपकी वहाँ पे कुछ चैनल्स हैं, चैनल्स के ऊपर आपका कंटेंट प्ले होता है, 4 घंटे का कंटेंट 5 टाइम्स इन अ डे, सो दैट यू कैन वॉच एट योर ओन कन्वीनियंस, एट योर ओन स्पेस। आप उस चीज़ को समझ सकते हो, राइट, उसको पॉज नहीं कर सकते। तो देर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस। सो दीज आर बीइंग प्रोवाइडेड। इसमें आपके टॉप IITs, UGC, CEC, इग्नू, ये हर कोई आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है, आपके UG, PG एंड आपके UG एंड PG कंटेंट होते ही होते हैं इसमें। तो वो चीज़ें आपके स्कूलिंग लेवल का भी एजुकेशन होता है इसमें कवर्ड। तो बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है टू मेक श्योर दैट एजुकेशन इज एक्सेसिबल टू ऑल, राइट। तो जो आपके एजुकेशन है, जो
that has become और कि काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि टू गेट एजुकेटेड, बट अब विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर स्ट्राइविंग टू मेक श्योर दैट एवरीवन गेट एजुकेटेड। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं स्वयं प्रभा या स्वयं से पढ़ रहा हूँ, राइट, सो आई एम नॉट गेटिंग एनी सर्टिफिकेशन, राइट। अगर मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए सो देन आई हैव टू गिव एन एग्जाम एंड फॉर दैट आई हैव टू पे सम फीस, राइट। तो अगर मेरे को स्वयं से अगर कुछ पर्टिकुलर कोर्स लर्न करना है, लेट्स सपोज इफ आई वांट टू लर्न अबाउट अकाउंटिंग और फाइनेंस, so what will happen in that case? I'll go through the videos, I'll learn through it, but if I need a certification, अगर मुझे कोई certification की ज़रूरत है, in that case, in that scenario, I need to pay some certain examination fees. Then I have to appear in the examination, make sure that I clear the examination, and then a certification will be awarded to me for the same. Okay, तो वो चीज़ है, बिल्कुल exactly free नहीं है, but हाँ certification के लिए you need to pay. Now another important scheme that you should know about is National Digital Library. एक और important scheme है, ये भी Ministry of Human Resource Development ने ही बनाई थी. This was also launched in 2017 as well. जो आपकी स्वयं प्रभा है वो भी 2017 में लॉन्च हुई थी. तो ये जो है आपको इसमें मिशन याद करना है, अंडर इट्स नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, NMEICT. ये आप काफ़ी बार देखोगे, NMEICT. ICT का तो सिंपल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, ठीक है, इसको याद कर लो. NME क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, NMEICT. ये आपका आगे भी आएगा एंड ये आपकी फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है. सो यू नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस. आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या फुल फॉर्म है. उन्होंने इनिशिएट करा है द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पायलट प्रोजेक्ट टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज थ्रू अ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी. क्या है अभी इसके बारे में पढ़ते हैं. ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है दैट कलेक्ट्स एंड कोलेक्ट मेटा डेटा फ्रॉम प्रीमियम लर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अब्रॉड. जो भी आपके डेटा होते हैं इंस्टीट्यूशंस दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशन लर्निंग मटेरियल, काफ़ी सारे आपके इंस्टीट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो उन सबको ये कलेक्ट करता है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम अब्रॉड as well as other relevant sources. It is a digital repository containing textbook, articles, videos, audio books, lectures, simulation, fiction and all other kinds of learning media. तो इसमें ना ही सिर्फ आपको कोर्सेज प्रोवाइड करे, जहाँ पे हम वीडियो ट्यूटोरियल्स की हम बात करी थी, इसमें आपको टेक्स्ट बुक मिलेगा, ई कंटेंट, आर्टिकल्स मिलेंगे दैट हैज़ बीन पब्लिश बाय द प्रोफेसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीमियम यूनिवर्सिटीज, वीडियो ऑडियो बुक्स, lectures, simulation fiction, these will helpful in your practical subjects. So आपके engineering side and ये जो subjects होते हैं तो उसमें that will be very helpful and all other kinds of learning media. So this is your national digital library. ये एक national digital library का इनिशिएटिव लिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, याद रखना ज़रूरी है, अंडर इट्स नेशनल मिशन on education through information and communication technology. So this is very important, one of the another important schemes of the government of India, so that you need to remember this, right? NDL, National Digital Library. If this question comes upon NDL, make sure that you do mark the right answer. आप ऐसा ना हो गलत आंसर मार्क कर दो, ठीक है. अब हम बात करते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी. अब बिकॉज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और इसके बाद काफ़ी सिमिलर सा लगता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो NAD का मतलब क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी. ये भी इनिशिएटिव किसका है, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू फैसिलिटेट डिजिटल इशुएंस, स्टोरेज एक्सेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स इशू बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. तो इसमें क्या है, आपको एक्चुअली दिस इज लाइक अ डिजिटल वॉलेट. हमारे जो डिजिटल वॉलेट होते हैं वेयर वी कैन स्टोर आवर मनी, एंड द ड्राइविंग लाइसेंस, देयर आर सच सर्टेन फैसिलिटीज. तो ये भी एक यूनिक और एक इनोवेटिव प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव लिया गया है अंडर डिजिटल इंडिया, अचीविंग डिजिटल एनेबलमेंट ऑफ एजुकेशन रिकॉर्ड्स. आपके जो एजुकेशन रिकॉर्ड्स है उनको एक जगह रखा जाए. लेट सपोज आप कहीं इफ यू अप्लाई फॉर अ जॉब, राइट, आपको अपना सारा का सारा डेटा, या फिर इफ़ यू हैव टू पोस्ट इट ऑन अ CV, आप एक CV देते हो टू योर एम्प्लॉयर, राइट, या आप इंटरव्यू में बैठते हो, आपके CV में वो देखते हैं कि आपके क्या एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स हैं विच आर नॉट वेरीफाइबल, राइट, एट दैट टाइम. मे बी दे आर एंड मे बी दे डोंट, राइट. सो समटाइम्स क्या होता है कि देयर हैव बीन केसेस ऑफ
fake documentation where people have where the the applicants have been, उन्होंने अपनी ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा मार्क्स बता रखे हैं, तो उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, आपको एक डिपॉजिटरी बना दिया है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अगर उन्होंने ये चीज़ बता रखी है कि ये ना ये आपके डिजिटल वॉलेट की तरह, यहाँ पे यू कैन स्टोर ऑल ऑफ योर एकेडमिक डेटा, आपका जो भी सर्टिफिकेशन है, आपकी जो भी एकेडमिक अवार्ड्स व्हाट यू हैव अर्नड थ्रू आउट योर करियर, दैट यू कैन स्टोर एट वन प्लेस, and that can be shown as a proof to your employer as well। तो आप वो चीज़ दिखा सकते हो। तो इसमें इंडियन यूथ की लाइफ पे एम्पावर करता है डिजिटल ऑनलाइन ट्रस्टेड पे ध्यान रखना, वेरीफाइबल सर्टिफिकेट्स विच आर एक्सेसिबल इन सिक्योर मैनर एट ऑल टाइम्स। सो इससे यहाँ पे all those employers who are dealing with such issues, they can be rescued thanks to this national academic depository। इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे प्रोमिस भी करते हैं, लेट्स सपोज इट्स समटाइम्स अ बिट ऑफ हैसल दैट यू हैव टू टेक अलोंग योर फिजिकल सर्टिफिकेट्स। आपको पता है कि हमें फिजिकल सर्टिफिकेट्स, वी नो द वैल्यू ऑफ दोज फिजिकल सर्टिफिकेट्स, सो वी एक्चुअली कीप देम एट अ सेफ प्लेस। एंड बिकॉज काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन हो जाते हैं, तो उनको कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस ऑफ इंटरव्यू टू अदर, इफ तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें क्या है, ये प्रॉमिस कर रहा है टू डू अवे विद द डिफिकल्टी एंड इनएफिशिएंसीज ऑफ कलेक्टिंग, मेंटेनिंग, प्रेजेंटिंग फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट। तो उन सबको जो भी उनसे प्रॉब्लम आ रही थी, दैट ऑल कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। सो दिस इज अ इनिशिएटिव, वेरी ग्रेट इनिशिएटिव इफ आई हैव टू। तो बहुत हमारी सबकी लाइफ से काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है एमएचआरडी ने लिया है। मेक श्योर कि आपको पता हो कि क्या मतलब है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का। इसमें आपको ये नहीं कि आपको पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है, वॉट एवर यू हैव लर्न, वॉट एवर यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, विच यू कैन basically show to other people that I have the certificate for the same, you can carry them digitally। तो वो हमारा नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की वजह से हो पाता है। नाउ विल टॉक अबाउट वर्चुअल लैब्स। सो सी वर्चुअल लैब्स का हमारे पास एक, अगर हम एक एग्जांपल ले कि क्या है वर्चुअल लैब्स। सो एज पैंडमिक केम से, और उससे पहले भी, अगर लेट सपोज वेंस यू क्रैक योर यूजीसी नेट जेआरएफ, अगर आपको जेआरएफ मिलता है, एंड नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर इन कॉमर्स मैनेजमेंट line, one of those who want to do research are from the engineering side or from the chemicals engineering side, right? So if you're one of those students, so आपको एक चीज़ पता है कि in India, like if you have cracked the examination, we have limited resources, right? हमारे पास लैब्स लिमिटेड है, हमारे पास जो मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिस पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, वो बहुत लिमिटेड है। We don't have the resources and the capabilities like other developed nations, right? We are a developing nation, हमारे पास उतने resources नहीं हैं, that is a fact। तो वो जो चीज़ें हैं, a physical distance and lack of resources make us to unable to perform experiments। तो हम experiment perform नहीं कर पाते। If you want to succeed at something, you need to make sure that you perform and you experiment till the time you achieve something new, right? So in सब fields के जो students हैं, they very much know about this and the situation that is related to it, right? Especially when they involve sophisticated instrument। Also, good teachers are always a scarce resource। Web-based and video-based course address the issue of teaching to some extent। Conducting joint experiment by two participating institution, also sharing costly resources has always been a challenge। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बार you need to collaborate with other colleges and institution, and you need to make sure that one of those the machinery and the equipment has been shared along, right? तो उसको share करा जा रहा है। With the present day internet and computer technology, the limitation can no more hamper students and researchers enhancing their skills and knowledge। But अगर हम देखें with time, we have been progressing as a nation where the internet is very cheap, right? And is being accessible by all, like by the most of the population, I won't say all, by the most of the population। Also in a country such as ours, costly instrument and equipment need to be shared with fellow researchers to extent possible। तो हमारे लिए virtual lab is what is basically a better
better alternative to our physical labs, because we need to share a lot with the other institution. We don't have those instruments, and a lot of students who actually have the potential to do something new, because of the limited resources they are not able to. Because अगर आपके पास resources नहीं है और आपके पास potential है, capability है, still आप नहीं कर पा रहे हो अपने, तो उस चीज़ के लिए we have this virtual labs where we can come up with the help of computer and the internet. We can experiment आपकी जो काफ़ी जो experiment, I won't say कि पूरी की पूरी तरह it's a replacement of your physical labs. That is not true, right? And that is not the case. But some of it we can do through virtual labs. Okay, so this is one of the initiative where we are talking about new things, right? Now another one is e-यंत्र. ये भी हमारा एक e-यंत्र है. अब NMHRD इनिशिएटिव अंडर NEICT, तो इसमें अगर हमने अभी पढ़ा था नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो अभी मैंने आपको बोला था कि ये बाद में भी आएगा, आगे भी आएगा. तो ये इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? NEICT, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च करा था, उसका नाम था ई-यंत्र. ठीक है, इसमें क्या है, यंत्र से अगर आप इफ यू नो हिंदी, अगर हिंदी पता है आपको, हिंदी आती है, तो यंत्र मतलब एक तरीके का कंट्रोल होता है, राइट? जैसे आप यंत्र यूज कर रहे हो, मोबाइल को भी हम यंत्र बोलते हैं. तो उसमें हम कैसे ही करते हैं कि वी आर यूजिंग समथिंग, वी आर ऑपरेटिंग समथिंग, राइट? तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ रिजेम्बलेंस होती है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट incorporating robotics into engineering education with the objective of engaging students through exciting hands-on application, right? As you know, as we have been seeing कि the robotics, रोबोट से रिलेटेड हमारी जो इंडस्ट्री, हमारी जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इट्स नॉट ओनली इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री एज वेल, काफ़ी ज़्यादा रोबोट्स का हमारे लाइफ में, नॉट इन इंडिया एज ऑफ नाउ, बट या इन अदर कंट्रीज, लेट सपोज इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ जापान, वहाँ पे देर इज अ फुली ऑपरेटेड रेस्टोरेंट्स बाय द रोबोट्स, राइट? वहाँ पे आपका ऑर्डर मेन्यू जो भी है सब वो रोबोट लेके आता है, एंड उसके आगे यू नीड टू प्लेस द ऑर्डर एंड देन सब्सिक्वेंटली दे विल डिलीवर यू द ऑर्डर एज वेल. तो ये जो सब चीज़ें हैं रोबोटिक्स के बारे में, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर. वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली प्लानिंग to be in the current state, but for the future phase, जब वो निकलेंगे, like once they pass out from our college or once they graduate from our college, they should be ready to work in those industries, right? So those standards are increasing, we need to make sure that their knowledge is also increasing. तो ई यंत्र इम्प्लीमेंट करा गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा टू इम्प्लीमेंट इनकॉर्पोरेट रोबोटिक्स इनटू इंजीनियरिंग. जैसे रोबोटिक्स से रिलेटेड जो भी आपकी एप्लीकेशन है उस पर स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल पाए, so they are also getting in competitive edge, right? So whenever, let's suppose they graduate, जब भी वो ग्रेजुएट होते हैं तो दे कैन बी बेसिकली गेट द वर्क, उन्हें एक एडेड एडवांटेज मिले कि वो इंडस्ट्रीज में काम कर पाए, राइट? Creation of robotic platform has been very successfully demonstrated during phase 1 of the project. Presently, e-Yantra has been implemented in 100 colleges. उसके बाद अभी बिकॉज इट वॉज लॉन्च फ्यू ईयर्स अगो, तो अभी काफ़ी कॉलेजेस में हो चुका है, 400 to 500 कॉलेजेस में है एज पर द लास्ट इंफॉर्मेशन दैट आई गॉट. तो वो जो चीज़ है, इससे हमें पता लगता है कि ऑल दोस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विल गेट एन एडेड एडवांटेज अपॉन हाउ टू यूज रोबोटिक्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. एंड वंस दे ग्रेजुएट, जब भी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, so they should have a clear idea upon how to use all these robotics into their work process, right? Now we'll talk about the another scheme, very important scheme, campus connectivity. So if you are one of those students who have recently graduated, अगर आप अभी अपनी अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है, या फिर अभी कुछ टाइम, इफ़ यू आर स्टिल इन योर मास्टर्स, स्टिल वांट टू गिव योर यूजीसी, आपका लास्ट ईयर है मास्टर्स का, उसके बाद आप नेट क्लियर करके सीधा वांट टू परस्यू पीएचडी, राइट? तो आपको ये चीज़ के बारे में, इफ़ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव बीन इन स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो आपको इस कैंपस कनेक्टिविटी के बारे में आइडिया होगा, राइट? इस स्कीम के बारे में.
तो हुआ क्या, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैंने बोला इसको आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्स टू लेवरेज द पोटेंशियल ऑफ IT in teaching and learning process. In teaching and learning process, the mission also aims to provide 20 broadband connections of 112 kb per second speed to over 25 colleges and 2000 polytechnics and optical fiber connectivity of 1 Gbps to 490 universities and university level institution in the country. तो ऑन द लाइन्स डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया हमारे जो गवर्नमेंट का एक काफ़ी बड़ा स्कीम रही है जिसमें वी मूव्स टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। तो MHRD ने इसके बारे में बात करी कि जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ है उनको वाईफाई एनेबल कैंपस कर देना। तो मैं तभी ये आपके बारे में बोल रहा था ना, बिकॉज आई हैव बीन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। इट इज़ ऑल्सो सिमिलर इन DTU एज वेल। इन IITs वहाँ पे भी, IIMs में भी, NIITs में भी है, वहाँ पे आपके वेल एस्टैब्लिश वाईफाई कैंपसेस हैं। तो आप DU के किसी भी कॉलेज में जाओगे, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु इज स्टडिंग इन दिल्ली, हु हैव स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे फ्री वाईफाई एक्सेसिबल कराया गया है, जिससे कैंपस कनेक्टिविटी, जिससे स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट हो, वहाँ पे वाईफाई हो कैंपस में, एंड दे कैन इम्प्रूव एंड एनहांस आपकी लर्निंग टेक्नोलॉजी को प्रॉपर। तो ये जो है गवर्नमेंट की स्कीम है कैंपस कनेक्टिविटी, सो दिस डिडंट हैपन ओवरनाइट, कॉलेजेस को सपना नहीं आया था। सो दिस हैज़ बीन अ स्कीम दैट हैज़ बीन ऑपरेटेड रन, और ये भी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रही है। तो कैंपस कनेक्टिविटी काफ़ी इंप्रूवमेंट ला रही है, जिससे बच्चे फ्रीली एक्सेसिबल कर लें आपका वाईफाई, कॉलेज का, कैंपस का वाईफाई। सो ये जो हमारे चेंजेस हैं, वी हैव बीन सीइंग इट अ लॉट। और ये जो स्कीम्स है, यू आर वन ऑफ दोज हु एक्चुअली गॉट द बेनिफिट्स फर्स्ट हैंड। तो अगर आप थे कॉलेज कैंपसेस में, बिकॉज बहुत सारा जो कंटेंट होता था, लेट्स सपोज इफ योर टीचर हैज रिकमेंडेड टू रीड सम फॉरेन ऑथर, राइट, सो फॉरेन ऑथर की बुक्स अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट अ फिजिकल कॉपी, तो आप डिजिटल कॉपी ले सकते थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें, दैट इज़ वाई कैंपस कनेक्टिविटी हैज़ बीन वेरी इज़ अ लाइक very great step for making sure that we move towards digitalization a lot, right? तो ये हमारा स्कीम था, right? So we are towards the end of the session and we have completed our unit 8 की important digital schemes। important digital schemes हमने कवर कर लिए। अब इसमें होता क्या है, इससे आपको पता लग जाता है कि ये जो सारी स्कीम्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट, बट देयर आर स्टिल फ्यू मोर स्कीम्स दैट यू नीड टू स्टडी फ्रॉम योर एंड। उसका भी मैं अभी बताता हूँ, हाउ एंड फ्रॉम वेयर यू कैन स्टडी ऑल दो स्कीम, फ्यू मोर स्कीम्स दैट यू एक्चुअली नीड टू नो। गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल, जैसे मैंने आपको पहले ही इनिशियल डेज, अब इन द इनिशियल फ्यू मिनट्स आपको बताया कि आपको PYQs पे जाना ही जाना है, पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डिजिटल स्कीम्स के हम आपको याद करने हैं, जो आपको स्कीम्स में हमेशा एक पैटर्न होता है कि क्या क्या याद करना होता है स्कीम्स में। यू नीड टू रिमेंबर द ईयर विच मिनिस्ट्री गेव इट, मिनिस्ट्री आपको याद करनी पड़ती है कि किस मिनिस्ट्री ने दिया, व्हाट इज़ द पर्पस, क्या पर्पस है उस स्कीम का। तो वो जो हम जो टच अपॉन करा है उस स्कीम्स में, और ये जो है आपको नोट्स बनाने हैं फॉर द सेम, इनके नोट्स बना लोगे, वो आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे, रिवीजन में हेल्प करेंगे, और दैट विल eventually help you in clearing the examination as well. As you know, your examination is like 20 days from now, तो you don't have a lot of time left। तो अब मैं बोलूँगा start attempting mock test as well। mock test attempt करने के लिए भी I'll give you a platform, कहाँ से करने हैं वो सब मैं अभी बताता हूँ, right? So as I said कि आपको पूरा का पूरा स्कीम्स याद करनी है, कौन कौन से स्कीम्स है, जो देयर आर सम और अदर इम्पोर्टेंट स्कीम्स एज वेल, वो भी फ्री में यू कैन ईजिली आप क्या कर सकते हो, ईजिली क्लेम कर सकते हो द एसेंशियल ई बुक, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे पेडागॉजी मूव में। तो ये आपका ई बुक है, ई कंटेनर ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। इसमें आपके सारे एसेंशियल्स है विच आर कवर्ड फॉर योर UGC नेट एग्जामिनेशन। वॉट all you have to do is drop a text on this number 9873907600। इस पे आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप करना है, एंड देन यू कैन ईजिली गेट योर फ्री ई बुक
फॉर द सेम आपको ई बुक मिल जाएगी। अब इस ई बुक की वजह से मैं जैसे आपको बता रहा था, यू कैन ईजिली गो थ्रू स्कीम्स, आपको स्कीम्स मिल जाएंगे, आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू बी थरो विद योर प्रिपरेशन तो व्हाई नॉट, राइट। सो आप सिंपल व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रॉप अ टेक्स्ट एंड इट इज़ फ्री, राइट। सो व्हाट इज़ द हार्म, कुछ हार्म ही नहीं है, तो इजीली यू कैन क्लेम दिस वन, राइट। नाउ सो इफ़ यू हैव बीन ऑन द चैनल सो यू नो दिस, बट अगर आप पहली बार आ रहे हो सो थैंक यू फॉर being a part of the channel. So what you need to do is download the Talent Bazer app from the Google Play Store. The link for the same will be given in the description below. वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस क्यूज आपको अटेंड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ पे आप सिंपल से ऐप डाउनलोड करो, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। बिकॉज एज ए सेड, बिकॉज यू आर नियरिंग योर एग्जामिनेशन नाउ, आपको टेस्ट करना है आपको कितना आता है कितना नहीं आता, तो मॉक टेस्ट के बिना हाउ विल यू नो, राइट। तो मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। अब मेरी तो रिकमेंडेशन होगी कि हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट दो, जिससे आपकी और प्रैक्टिस होती रहे। तो वो सिंपल है, यहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो ये ऐप, यू कैन ईजिली गेट द मॉक टेस्ट। और आपको अगर आप मॉक टेस्ट में लेट सपोज इफ यू आर फेलिंग एट गेटिंग अ क्वेश्चन राइट, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो अगर वहाँ पे आपकी डिफ़िकल्टी हो रही है, आप गलत आंसर भी करते हो, तो देन a rightful logical solution will be provided for the same, so that you don't make error in your examination. So that is there, right। तो इसलिए ये भी कोई इसमें भी there is no charges, you need to just download it from the Talent Bazer from the Play Store, Google Play Store, right। So if you are new to the channel, make sure that you like the video। अगर आपको पसंद आई तो definitely like करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना to the channel, so whenever I come with a new video, hit the bell icon and you will be notified for the same, and share this video with your friends, right। शेयर करना मत भूलना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 8। हमारी जो यूनिट 8 के बारे में था, मैंने आपको मेजर चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, जो भी आपका एसेंशियल्स है दैट यू कैन ईजिली क्लेम दैट वन बाय टेक्सटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर। व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट करना है एंड यू कैन गेट योर ई बुक क्लेम। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।